Hey, hi everyone. Namaste. So I'm here for one more video, and this video is about my perception and what I've learned from 2020 and what I'm gonna do in 2021. So, and this is not about any resolution. It is not about what is my wish list. It is about what I have actually learned from last year, which is 2020. See the very much unexpected teacher. I can say that. I must say that. And one more very important thing, that I don't want to speak anything about negativity or negative talk. Why? Because we already did it a lot about 2020. So what we learned from last year, and what last year actually taught us to do, so what we can do in our next life. It is not about 2021, it is not about just few months, no, it is just about the whole lifespan. So what should we do, what should we not do, and what new habit we should get into our life, which is very very important for us, for our family, for our children, and for our society, everything. So here I am going to share with you all. So according to me, what I'm going to do myself, like more in this year or coming in this year, is this: to feel good. See, feel good is very 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 important for anybody life. मेरी लाइफ के लिए भी है, because if you feel good, you'll definitely do good. If you do good, definitely surrounding your people, जो भी आपके आसपास लोग हैं, your family, your loved one, your friends, your your children, they also suddenly feel good to see you, to be with you. So these are the very important thing. Create your own style. Just every time ऐसा नहीं होता है कि we need to copy this, copy that. No, copying is very very easy, fine, but हाँ, हम inspire हो सकते हैं, थोड़ा बहुत copy भी कर सकते हैं, which is fine, but always look at yourself, that कि आप पे क्या चीज़ें अच्छी लगेंगी, because your life is about yourself. It is not about anybody else. So my life is about myself, not anybody else. It's so cute. So आप बच्चों को खेल खेल में भी अगर आप चीज़ें सिखाना चाहते हो, तो वो डेफिनेटली सीखेंगे. और अगर हम जब करते हैं तो दे एक्चुअली वॉच, और दे वॉच, दे कॉपी. सो वो ऑटोमेटिक भी आता है. तो ज़रूरी नहीं है कि आप फोर्स करो, या आप जो चाहते हो. डेफिनेटली मैं खुद चाहती हूँ कि ये कुछ चीज़ें करें, बट मैं उसको फोर्स नहीं कर सकती हूँ. मैं उसको इनडायरेक्ट वे में कुछ तरीके सिखा सकती हूँ. सो दिस इज़ व्हाट आई डू विथ माय बेबी, एंड ही नो हाउ टू डू ओम नमः शिवाय. वेरी गुड. ओहो. सो बच्चे सीखते हैं, और दिस इज़ द राइट टाइम जो आप ऑलरेडी एक रूट आप कर सकते हो, बिकॉज इनके जहन में ऑलरेडी वो चीज़ें रहेंगी. क्योंकि आप जितनी चीज़ें आप लेट शुरू करोगे, वो चीज़ें इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम, इट्स टेक टाइम. सो अभी इट्स वेरी इजी ऑल्सो. जब वो धीरे धीरे वो माहौल जब देखते हैं, वो
जब वो सिनेरियो देखेंगे तो वो ऑटोमेटिक दे विल ग्रैब इट एंड ऑटोमेटिक वो भी चीज़ें करेंगे. तो वो हमें गुड हैबिट स्पेशली डालने की ज़रूरत नहीं होगी. सो स्पेंड टाइम विथ चाइल्ड. और आई एम श्योर सबको अच्छा लगता होगा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना. इट्स रियली स्ट्रेस बस्टर एंड डेफिनेटली इट्स इरिटेटिंग ऑल्सो. जब वो रोते हैं और परेशान करते हैं तो बहुत इरिटेशन होती है. और बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी फील गुड. एंड अपने को बच्चों के पास टाइम स्पेंड करना चाहिए. वन थिंग आई हैव नोटिस इन मी दैट बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत पेशेंस आता है जो मुझ में नहीं था. एंड आई हैव नोटिस इन माई सेल्फ दैट कि आई हैव गेन लॉट ऑफ पेशेंस. अभी और भी पेशेंस चाहिए मुझे, आई नो दैट, बट इट्स फाइन. I am growing and definitely he's cute, he's very cute, very cute. So be happy. Okay, bye. Smile more and everybody is very much well aware of this fact is reading is really fantastic hobby and it's really good for intelligence, it's good for awareness, XYZ, but we do hardly. So if you are not more into reading books, so you can use audio and gain your knowledge, but read book as much you can. I just love reading book. And one more thing, I have started using herbs in my life because keeping myself healthy is very important, because I don't want to spend time my rest of the life like I have been in this, I have been in that, and I have this problem, that problem. I think automatically ये चीज़ें आएंगी, but आएंगी that does not mean I am getting ready for that कि वो problem आएगी. Rather than thinking in that position, I would love to think like कि वो चीज़ें ना आए और मैं जब तक हम यहाँ रहते हैं हम हेल्दी रहें एंड स्माइल करते रहें, बिकॉज प्रॉब्लम तो आएंगी. तो आई डोंट वांट टू फोकस ऑन दैट कि प्रॉब्लम तो आएंगी. प्रॉब्लम नहीं आएंगी इफ़ वी डू सर्टन एक्सरसाइजेस, इफ़ वी डू सर्टन take care of our health, skin care, body care, mental care. Definitely problems नहीं आएंगी. Next point is, not everybody is your friend. So whosoever bunch of people, 100 of people, but not everybody is your friend and not everybody is your well-wisher. And so try to be very organized in manner of friendship, which is very, very important. Why? Because it's really helpful for your life and it's gonna be very harmful for your own life. So you need to very, very particular about your friends. One very important point is that you should never make relationship on
बेस्ड ऑन कि वो कभी काम आ सकते हैं. No, it's really wrong thinking. I think we should not get rude, definitely. Just we should sweet, nice, ignorable gesture, fine. It is totally okay. You don't need to go and fight. But we should not actually keep such kind of relationship, because it will affect you later and after that gonna do, very sure. Because of course, because you are one of them, I believe so. Because जिस चीज़ को हम अपने लाइफ में एक अच्छा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमारा खुद का अगर ऐसा इंटेंशन होगा तो डेफिनेटली आपके साथ भी वो चीज़ें होंगी. Last but not least, we should pray. We all should pray. एंड सबके अलग अलग तरीके होते हैं प्रे करने का. ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में जाओ, आपको रोज़ जाना ज़रूरी है, या आपको रोज़ पूजा करना ज़रूरी है. अप टू यू. आपको जो महसूस होता है, आपको जो कनेक्टिविटी होती है, यू कैन डू इट अकॉर्डिंग टू योर वे. और पूजा, ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि जब पूजा कर रहे हैं तो किसी को कुछ चाहिए होगा. डेफिनेटली चाहिए तो होता है, नो डाउट अबाउट इट. एंड गॉड है, वो दाता है, वो देने वाले हैं. बट देने और लेने के बीच में भी एक और गेस्चर होता है, विच इज थैंक्स. वी शुड ऑल्सो थैंक्स टू आवर सुप्रीम पावर, डिवाइन एनर्जी, विच इज ऑल्सो अ वेरी इम्पोर्टेंट. एंड आई एम श्योर वो जिन्होंने हमें बनाया वो पेरेंट्स की तरह है. सो उनको भी ये गेस्चर बहुत ही अच्छा और फील ज़रूर होगा, विच आई थिंक सो. ये मेरी पर्सनली ऐसी सोच है. सो वी शुड ऑल्सो थैंक्स टू आवर डिवाइन एनर्जी, जो भी हमें उन्होंने अब तक दिया है, हमें रास्ता दिखाया है, और जो भी हम चाहते हैं वो उस चीज़ में साथ दिया है. बिकॉज आई फेल दिस, दैट्स वाई आई एम टॉकिंग लाइक दिस. और सबके प्रे करने का तरीका अलग होता है. इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अगर रोज़ पूजा कर रही हूँ तो आई एम मोर केपेबल फॉर जो रोज़ नहीं कर रहे हैं. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सबका एक अपना पर्सनल कनेक्टिविटी होता है, और विच इज़ इम्पॉर्टेंट. सो ये कोई भी श्योरिटी नहीं है कि आई एम द बेटर वन एंड अदर इज़ लाइक सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. And yeah, the gesture of thanks is really very important too, because हमें thanks करना नहीं भूलना चाहिए. because हमको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए ही होगा जब तक लाइफ है. so हमें thanks कभी भूलना नहीं चाहिए. और every time आप जब पूजा करते हुए sometime आप एक ऐसा वक्त भी I think बनाना चाहिए जहाँ पे you always just go for a thanks to आर डिवाइन एनर्जी. और एक चीज़ और है, पूजा करने से, प्रे करने से, जो भी अपने अपने तरीके से सब करते हैं, वो हमें बहुत ही बैलेंस करता है. वो हमें पता नहीं चलता है, बट व्हेन यू आर इनटू दीज थिंग, वो हमें बहुत ही बैलेंस करता है. बिकॉज there are so many things in the life. So sometime आप थोड़े भटक जाते हो, sometime you feel depressed, sometime you feel negative, sometime you feel very weirdness, जो आप कभी कुछ चीज़ें महसूस करते हो, आप शेयर नहीं कर पा रहे होते हो. ये चीज़ें होती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम पे आप शेयर करो उस टाइम पे आपको कोई समझे, और समझने वाले की भी कोई गलती नहीं होती है. इट इज़ नॉट अबाउट कि किसकी गलती है और किसकी नहीं है. नो. सो ये चीज़ें मैंने खुद से भी नोटिस किया है. व्हेन यू डू सर्टेन गुड रूटीन of praying or meditation, anything, so that's keep you very balanced, and that's keep you very awakened, which is very beautiful. And एक रूटीन आता है. जिस तरह आप नॉर्मली भी लाइफ में जब सर्टेन चीज़ें करते हैं, रूटीन के लिए करते हैं, which is good, कि हम जानते हैं कि रूटीन बहुत ज़रूरी है. तो दैट प्रेइंग इज ऑल्सो सेम थिंग, जो हमें बहुत ही क्लिंज करता है. अगर आप कुछ सर्टेन टाइम के लिए नेगेटिव महसूस कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो जब आपकी 5 मिनट भी है, 2 मिनट के लिए भी है, 10 मिनट के लिए भी वो एक पर्टिकुलर पूजा आप करते हो, प्रे करते हो, तो उस टाइम ऑफ पीरियड में यू विल बी क्लिनजिंग. वो आपकी क्लिनजिंग होगी उस टाइम पे. सो इट्स गुड टू डू. और ज़्यादातर मैंने क्या नोटिस किया है,
लोगों में, इनफैक्ट मैंने खुद भी किया है कि व्हेन योर मूड इज अपसेट और एनीथिंग एल्स, तो यू स्टॉप डूइंग ऑल दिस थिंग, बिकॉज मेरा मूड नहीं था। आई थिंक उस टाइम पे आपको 5 मिनट और 10 मिनट निकाल के या 2 मिनट निकाल के करना चाहिए, बिकॉज तभी वो आपको पॉजिटिव वाइब देगा। जब हमारी तबीयत खराब होती है, डेफिनेटली वी टेक मेडिसिन, सो मेडिटेट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर मेंटल हेल्थ। सो दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जो हम उस तरीके से नहीं सोचते हैं। वी ऑलवेज जस्ट थिंक कि ओके प्रेइंग करना जरूरी है बिकॉज हमको कुछ चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, बट चाहिए के अलावा भी देयर सो मेनी सर्टेन एंड ब्यूटिफुल थिंग्स जो हमें एक्सप्लोर करना चाहिए अपने अंदर। So these are the things, and I hope you all liked it and keep supporting me. So till the time, thank you so much and take care. Bye bye. Namaste.